हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 20 अक्टूबर। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी, तब हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे। ये कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण सार है। अत्रेय ऋषि को पत्र 20 अक्टूबर 1973। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। So, in different ways, Krishna is trying to convince us how the soul is immortal. Different ways. Jainam vitti hantaram. When there is fight, so if one is killed, so Krishna says that if one thinks that this man has killed this man, so or this man can kill this man, this kind of knowledge is not perfect. Nobody kills nobody. Then the butchers, they may say that, then why do you complain that you are killing? That killing the body. But you cannot kill when there is injunction, thou shalt not kill. That means you cannot kill the body without sanction. You cannot kill. Although the soul is not killed, the body is killed, still you cannot kill the body without sanction. That is sinful. For example, that a man is living in some apartment, so somewhere or other you drive him away from that. Illegally you drive him away. So the man will go out and will take shelter somewhere. That's a fact. But because you have driven him away from his bona fide position, you are criminal. You cannot say, although I have driven away, he will get some place. No, that's all right. But you have no power to drive him away. He was in his legal position to live in that apartment, and because you have forcibly driven him away, you are criminal. You should be punished. So this argument, the butchers or the animal killers or any kind of killer, they cannot put argument that here Bhagavad Gita says that soul is never killed, na harnate harnamane sarire, even after destroying the body. So why you are complaining that you are killing? So this is the argument, that you cannot even kill the body. That is not allowed. That is sinful. Ubhautau na vijanito naya hanti na hannate. So nobody kills anybody, neither anybody is killed by others. This is one. Again, in a different way, Krishna says, Najayat, the living entity never takes birth. The birth is of the body, or the death is of the body. Living entity, the spiritual spark, then that being Krishna's part and parcel,
As Krishna does not take birth, does not die, Ajopi Sannit Abhyatma, you'll find in the 4th chapter. Ajopi, Krishna is Aja. Aja means who never takes birth. Similarly, we being part and parcel of Krishna, we also never take birth. The birth and death is of this body. And you are so absorbed in the bodily concept of life that when there is birth or death of the body, we feel the pains and pleasure. There is no pleasure, of course. Birth and death, it is very painful. Because, that is already explained, the consciousness of the soul is spread all over the body. Therefore, the pains and pleasure felt on account of this body. So Krishna has already advised that such kind of pains and pleasure, matras parshastha konteya, touching the skin only, one should not be very much bothered. Tang titikkhasya bharat. In this way, if we think about our position, self-realization, how we are different from the body, actually this is meditation. If we think very seriously about ourselves and about the body, that is self-realization. Self-realization means I am not this body, aham brahmasmi, I am spirit soul. That is self-realization. So na jayate na mriyate va kadachit. Kadachit means any time, past, present and future. Kadachit. In the past it is already explained. In the past we existed, maybe in a different body. At present we are existing, and in the future also we shall exist, continue to exist, maybe in a different body. Maybe not actually. Tatha dehantaram prap. Because after giving up this body, we have to accept another body. So this is going on. And ignorance, without knowledge of self, we are being kept in ignorance. The so-called educational system all over the world, there is no such education. They are kept in darkness and ignorance, and still so much money is being spent, especially in the Western countries. They have got money, big high schools, but what is the production? All fools and rascals, that's all. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो भगवान अभी क्या बताए? राग, क्रोध और भय से मुक्त हो जाओ। सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा कल के श्लोक में, जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तब तक इस संसार में हम ढूंढते रहेंगे आनंद को। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आनंद ढूंढ रहा है, और आनंद क्या है? कृष्ण है। तो जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी जीव संसार में
पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए, पैसे वालों की कमी नहीं, नाम है, शोहरत है, लेकिन संतुष्टि कहाँ है? संसार में ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ है लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम नहीं है ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। 3 एस्पेक्ट बताए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्देति। भगवान कृष्ण जो साकार है, जिनका रूप है, और कैसा रूप है, श्याम सुंदर नाम है भगवान का, कितना सुंदर रूप है। कालिया ने भी जब कृष्ण का रूप देखा, बोले कितना सुंदर बालक है। जब भगवान राम का रूप देखा, राक्षसों ने बोले कितना सुंदर है ये योद्धा कितना सुंदर है। तो राक्षस भी प्रभावित हो जाते हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप है। वही भगवान इस भौतिक संसार में, क्योंकि हम आ गए हैं यहाँ भटकने के लिए, हम सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। वो भगवान का अंश है परमात्मा। परमात्मा पूर्ण भगवान नहीं है, उनका अंश है। और भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति, जो लाइट प्रकट होती है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कुछ हैं जो बोलते हैं कि सब कुछ निराकार है और वे ब्रह्म में जाना चाहते हैं। योगी लोग भगवान के अंश अवतार परमात्मा को हृदय में उनकी उपासना करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान कृष्ण के भक्त जो वैष्णव हैं, कृष्ण या किसी भी रूप, राम, नरसिंह देव इत्यादि किसी भी रूप के भक्त वैष्णव है, वही वहां पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, लोग बोलते हैं ज्योत में ज्योत समाई, क्या मिलेगा? ये बहुत अनंत अनंत लाइट है, कुछ नहीं है, सिर्फ लाइट। आप एक रूम में अगर आपको बंद कर दिया जाए, सब जगह सिर्फ लाइट है और कुछ दिख नहीं रहा, ना दीवार दिख रही, कुछ सामान नहीं दिख रहा, सिर्फ दीवार दिख रही। आपको वहां छोड़ दिया जाए, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पागल हो जाएंगे। क्या आनंद आएगा? सिर्फ लाइट, दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। और जो परमात्मा में ध्यान करते हैं, परमात्मा तो भौतिक संसार में, लेकिन परमात्मा के साथ आदान प्रदान कितना कर सकते हैं? ठीक है, भगवान के अवतार है, लेकिन क्या आदान प्रदान करेंगे? लेकिन भगवान के रूप में, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार, भगवान का साकार रूप है, तो कितना आदान प्रदान होता है, उसी में तो आनंद है ना। भगवान ऐसे तो 12 रस होते हैं, भगवान भक्तों के साथ 12 रसों का आस्वादन करते हैं, लेकिन 5 जो हैं वे प्राइमरी रस हैं। वे क्या है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। भगवान कह रहे ये यथामम प्रपद्यन्ते, जैसे तुम शरण लोगे वैसे मैं तुमको दूंगा। तो अगर कोई भक्त है जो भगवान का दास बन के, जैसे हनुमान जी हैं, श्री राम के दास है, दास बन के सेवा करना चाहता हूं, कब तक? सनातन काल तक। तो भगवान उसको दास के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके स्वामी बन जाते हैं। जैसे गरुड़ जी हैं, तो दास हैं भगवान, दास सभी हैं, लेकिन दास रूप में सेवा कर रहे हैं। दास तो सभी हैं, चाहे साख्य हो चाहे माधुर्य हो, सभी दास हैं भगवान के। कृष्ण ही स्वामी है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब तो उनके सेवक हैं पूरी सृष्टि में। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, मुझे ना भगवान के साथ खेलना है, कबड्डी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, रेस लगाना है, स्विमिंग करना है, साख्य भाव। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम वैसा भक्ति करो, तुम भक्ति करके उस लेवल पे आओ, फिर मैं तुमको अपना सखा बनाऊंगा। अर्जुन, सुबल सखा, श्रीदामा, सुदामा, ये सब भगवान के सखा भगवान के साथ खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और सब आनंद लेते हैं। फिर कोई बोलता है हमको तो भगवान बच्चे के रूप में चाहिए, तो यशोदा माता, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, ये सब भगवान के माँ बाप बनते हैं। दशरथ महाराज, माता कौशल्या, ये सब भगवान के
माता पिता बनते हैं और भगवान इनके पुत्र बन के इनसे आदान प्रदान करते हैं। और माधुर्य भक्ति जो गोपियां हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो भगवान के पास आप जिस भाव से जाओगे भगवान उस भाव से आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। अब बताइए, एक लाइट वाले रूम में अनंत सालों के लिए डाल दें, उसमें आनंद है, या भगवान को आप देख रहे हैं परमात्मा रूप में बस? अरे घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको सामने बैठा के उसको देखते रहते हैं क्या? नहीं ना, कुछ सेवा करते, अभी हृदय में बस देखते रहते हैं लोग। लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान किस में ज्यादा आनंद है? आप खुद अपनी बुद्धि लगाइए, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत होने दीजिए इन निराकारवादी और मायावादियों के चक्कर में। इसको समझिए, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचाने वाले भी भगवान है। ऐसा नहीं कि आप बिना भगवान के परमिशन के वहां तक पहुंचोगे, वहां तक भी भगवान पहुंचाएंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं देखो भाई यहाँ आ गए, कुछ मिलेगा नहीं, रिस्क है वापस गिरने का, तो फिर क्यों जाना? अच्छा, जो योगी होते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भी फल भगवान देते हैं। जो अपना धर्म कर्म कर रहे हैं उनको भी फल भगवान देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कहा छोटी छोटी चीज में लग गए, भक्ति करो ना, ये सब क्या संसार में लगे। तो कोई कहेगा नहीं प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में बहुत आसक्ति है ना, मुझे भोगना है। भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार। कि आपकी कोई कामना ना हो संसार में, या आपकी मोक्ष कामना हो, या फिर सब कुछ भोगने की कामना हो, बस भक्ति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान कृष्ण की भक्ति करते जाओ। ये धीरे धीरे मोक्ष की कामना हो, कुछ कामना ना हो, या फिर भोगने की कामना हो, ये सब शुद्ध हो जाएगा। और तब भगवान के साथ आमने सामने बैठ के भगवान की लीला में सम्मिलित होगी। भक्ति एकमात्र रास्ता है। भगवान कह रहे हैं जैसा आओगे वैसा दूंगा, लेकिन भगवान देना क्या चाहते हैं? भक्ति, क्योंकि वही पूर्ण आनंद हमको दे सकता है। इसीलिए हमें इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई बोलेगा भगवान कहाँ कह रहे हैं? भगवान तो बोल रहे हैं जो चाहिए मैं दूंगा, आओ मेरे पास। कहाँ बोल रहे हैं? आगे आएगा, बीच बीच में कहेंगे, लेकिन अंत में तो भगवान अर्जुन को कह देंगे सर्वधर्मान, सब छोड़ो, सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने तो ऑलरेडी गीता में उपदेश दिया है, लेकिन सब समझते समझते हम वहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे स्टेजेस में। लेकिन कंक्लूजन तो वही लास्ट है कि शरण लो, सब कुछ छोड़ो, भगवान की शरण लो और आनंद प्राप्त करो। हरे कृष्ण।